ओम। जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनययुत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। मेरी विनययुत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेदथी अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दी चारिणी प्रमाणी छे। उपमाप्यानी जेने तमारा खविते आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहोराज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय। जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वा जाणी तेणे जाणी छे। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओम। जय जिनेन्द्र। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका पृष्ठ संख्या हिंदी में 106 और प्रश्न संख्या 438 और गुजराती में 435। जीव समाज की बात चल रही है। जीव समाज कितने होते हैं? मूल में जीव समाज कितने? चौद। वेरी गुड। 14 जीव समास। कोने नाम आवड़े छे? परम दिवसे रटाया था 14 जीव समास। हाँ, हाँ, सूक्ष्म बदर क्या आ गया? 14 में सूक्ष्म बदर। हाँ, 7 पर्याप्तक અને અપર્યાપ્ત એકેન્દ્રિય એ બે પ્રકારના છે, સૂક્ષ્મ અને બાદર. પછી દ્વિઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય અને 5 ઇન્દ્રિય બે પ્રકારના, સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી. તો કુલ કેટલા થઈ ગયા? 7. આ 7 એ પર્યાપ્તક અને અપર્યાપ્તક. તો કેટલા થઈ ગયા? 14 ના વિશેષ ભેદ કર્યા તો કેટલા થયા? 98 થયા. 98 માં 85 તો તિર્યંચોના છે
ને 9 મનુષ્ય છે, 2 નારકી છે અને 2 દેવ છે, એમ પ્રકારથી. તો જે 85 તિર્યંચોના છે એમાં 42 તો એકેન્દ્રિયના જ છે. એકેન્દ્રિયના 42 ભેદ કર્યા હતા. એ કેવી રીતે કર્યા હતા? કોણ બતાવી શકે? તો એકેન્દ્રિય જીવો કયા કયા છે? તો પૃથ્વીકાયિક, જલકાયિક, અગ્નિકાયિક, વાયુકાયિક અને વનસ્પતિકાયિક. એમાં વનસ્પતિમાં એક સાધારણ વનસ્પતિ હોય, એક અસાધારણ એટલે પ્રત્યેક. બરાબર છે. તો સાધારણ વનસ્પતિ છે એ 2 પ્રકારની છે, નિત્ય નિગોદ અને સાધારણ વનસ્પતિ એટલે નિગોદ. તો એ નિત્ય નિગોદ અને ઇતર નિગોદ 2 પ્રકાર. એટલે હવે પૃથ્વીકાયિક, અપકાયિક, તેજસકાયિક, વાયુકાયિક, ઇતર નિગોદ અને નિત્ય નિગોદ એ કેટલા થઈ ગયા? 6 થઈ ગયા. આ 6 સૂક્ષ્મય હોય અને બાદરે હોય તો કેટલા થઈ ગયા? 12. પછી જે વનસ્પતિમાં પ્રત્યેક વનસ્પતિ રહી, એ પ્રત્યેક વનસ્પતિ પણ 2 પ્રકારની, એક સપ્રતિષ્ઠિત અને અપ્રતિષ્ઠિત. તો 12માં પછી 2 પાછા જોડી દો તો કેટલા થાય? 14 થઈ ગયા. એ 14 પર્યાપ્તકે હોય, અપર્યાપ્તકે હોય અને નિવૃત્તિ પર્યાપ્તક હોય. પર્યાપ્તક પણ હોય, અપર્યાપ્તક પણ હોય અને નિવૃત્તિ પર્યાપ્તક પણ હોય. તો 14 × 3 કેટલા થઈ ગયા? ગણિત લગાવવી પડે છે. ગણિત લગાવ. હવે ફરીથી ગણિત કોણ બતાવશે? ફરીથી ગણો ભાઈ. 42 ગણિત બતાવો બસ. કયા કયા છે? કિરીટભાઈ તમે ગણી શકો, તમે એન્જિનિયર છો. સીએ છો કે એન્જિનિયર? એન્જિનિયર. ગણિત બતાવો ને. માઇક આવો નરસિંહભાઈ. એન્જિનિયર તો ઘણા. સીએ બિપિનભાઈ એન્જિનિયર છે ને, તમે એન્જિનિયરિંગ અહીંયા લગાવવાની. પૃથ્વી કહે, જલ કહે, તેજ તેજ કહે, વાયુ કહે, પછી નિત્ય નિગોદ અને ઇતર નિગોદ 6 થઈ ગયા. વેરી ગુડ. પછી સપ્રતિષ્ઠિત અને એ 6 સૂક્ષ્મ અને બાદર. 12 એટલે કેટલા થઈ ગયા? 6 દુ 12. અને પ્રત્યેક વનસ્પતિના 2 ભેદ. કયા કયા? સપ્રતિષ્ઠિત અને અપ્રતિષ્ઠિત. એમાં 2 જોડી દો તો કેટલા થાય? 14. અને આ 14 પર્યાપ્ત, અપર્યાપ્ત અને લબ્ધ પર્યાપ્ત. લબ્ધ નહીં, લબ્ધ પર્યાપ્તક ને અપર્યાપ્તક એક જ છે. નિવૃત્તિ પર્યાપ્ત. તો પર્યાપ્તક, અપર્યાપ્તક અને નિવૃત્તિ પર્યાપ્તક 14 42. એટલે જ્યાં લબ્ધ પર્યાપ્તક આવે એનો અર્થ અપર્યાપ્તક જ છે, એમ સમજવાનું. તો 14 × 3 કેટલા થઈ ગયા? 42. હવે નહીં ભૂલવાનું, ભૂલી જવાનું. પારુલભાઈ ભૂલી જશે. હા, સીધી વાત છે કે એકેન્દ્રિય કેટલા છે? 5 એકેન્દ્રિય છે. તો એમાં વનસ્પતિ કાયમાં સાધારણ વનસ્પતિ લેવાની. એ સાધારણ વનસ્પતિ જ 2 પ્રકારની છે, નિત્ય નિગોદ ને ઇતર નિગોદ. તો એ 6 થઈ ગયા. હવે એ બધા સૂક્ષ્મ અને બાદર બંને હોય એટલે કેટલા થઈ ગયા? 12 થઈ ગયા. અને પછી પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં સપ્રતિષ્ઠિત અને અપ્રતિષ્ઠિત એમ છે. એટલે એમાં સૂક્ષ્મ બાદરના ભેદ નથી, એટલે અલગથી લીધું છે. કાલે તમે નહોતા, પરમ દિવસ સ્વાધ્યાયમાં નહોતા. ચલો, સ્વપ્રતિષ્ઠિત ને અપ્રતિષ્ઠિત કોણ બતાવશે? એને દ્રષ્ટાંત નથી,
કહેવાનો એની પરિભાષા, ડેફિનેશન, સપ્રતિષ્ઠિતની પરિભાષા શું છે? એક શરીરમાં અનેક શરીર હોય. એક પ્રત્યેક વનસ્પતિ જે જીવ હોય છે એના આશ્રય અનેક અનંત બાદર નિગોદિયા જીવ હોય. કયા જીવ? બાદર નિગોદિયા જીવ જે એક શરીરના આશ્રયથી રહે છે. પ્રત્યેક વનસ્પતિ, જે પ્રત્યેક વનસ્પતિના આશ્રય અનંત બાદર નિગોદિયા જીવ રહે છે, તો જે પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં બાદર નિગોદિયા જીવ રહે છે એનું નામ સપ્રતિષ્ઠિત. કેમ કે બાદર નિગોદિયા જીવથી એ જે શરીર છે એ ભરાયેલું છે. ખ્યાલ આ ગયા? और जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से बादर निगोदिया जीव नहीं रहते, वो केवल अकेला प्रत्येक वनस्पति रूप में ही है. उसको क्या कहते हैं? अप्रतिष्ठित. અરુણ દાદાને ખ્યાલ આવી ગયો? હવે ભૂલી જશો. એક્ઝામ્પલ કેવી રીતે યાદ રાખવાનું છે? હા, વેરી ગુડ. પણ જેની છાલ મોટી હોય એ સપ્રતિષ્ઠિત, જેની છાલ પાતળી હોય એ અપ્રતિષ્ઠિત. જોઈ લો. 438 विकल त्रय के 9 भेद कौन से हैं? विकल त्रय એટલે શું કહેવાય? 2 ઇન્દ્રિયથી 4 ઇન્દ્રિયને વિકલ ત્રય કહેવાય. વિકલ એટલે જેને ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ નથી. એક નથી પણ 5 પણ નથી, એકે નથી ને 5 નથી, એ બંનેને વચ્ચે વિકલ ત્રય. तो द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय के पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा 9 भेद हुए. तो पहले तो विकल त्रय कितने? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय ने 4 इंद्रिय. अब वो तीनों ही पर्याप्तक भी होते हैं, निवृत्त पर्याप्तक भी होते हैं और लब्ध पर्याप्तक का मतलब अपर्याप्तक भी होते हैं. तो 3 में 3 का गुणा करें तो कितने होते हैं? 9. तो विकल त्रय के कितने भेद हो गए? 9. बराबर समझाय छे? सरलाबेन ने समझाय? સમજમાં આવવું જોઈએ, ભૂલી જવાય એને વાંધો. વિકલ ત્રય એટલે 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય. તો કેટલા થઈ ગયા વિકલ ત્રયના ભેદ? 3. એ ત્રણે પર્યાપ્તક પણ હોય, એટલે पर्याप्तक द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय. निर्वृत्त पर्याप्तक द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय. અને અપર્યાપ્તક દ્વિઇન્દ્રિય, ત્રિઇન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય. કેટલા થયા? 9. સમજમાં આવી ગયા? પ્લસ ગુણો ને ભાકી ને એ બધા કરવાના હોય. કર્ણાની યોગમાં ગણિત કરવાની હોય. નિવૃત્તનો અર્થ તે દિવસે બતાવ્યું હતું. યસ, જે પર્યાપ્તિઓ પૂરી કરવાનો ચાલુ કરી દીધું છે પણ હજી પૂરી નથી થઈ, પણ નિયમથી પૂરી થશે. હા, એ પ્રોસેસમાં જે પર્યાપ્તિઓને પૂરી કરવાના જે પ્રોસેસમાં છે એનું નામ નિવૃત્ત પર્યાપ્તક. નિવૃત્તિ નામ રચનાનું છે. તો જેમાં રચના થઈ રહી છે, હજી રચના એની થઈ રહી છે. આ બધું એટલું સૂક્ષ્મ હોય કે તમને કોઈ એક્ઝામ્પલ નહીં આપી શકાય. પર્યાપ્તિઓ અંતર મુહૂર્તમાં પૂરું થાય, ફ્રેક્શન્સ ઓફ સેકન્ડ. હવે એમાં તમને શું ઉદાહરણ આપીએ? કે પેલા ગર્ભમાં છોકરું હોય અને હાથ પગ નીકળવા બાકી છે ને, એવું નથી. અહીંયા જ્યારે પેલો છોકરો ગર્ભમાં આવે ને એના ફ્રેક્શન્સ ઓફ સેકન્ડમાં એની પર્યાપ્તિઓ પૂરી થઈ જાય. પછી તો માત્ર એને અંગોપાંગ થવા જ બાકી છે. બસ પર્યાપ્તિઓ પૂરી થવામાં એટલે ફ્રેક્શન્સ ઓફ સેકન્ડ ગર્ભમાં આવે થઈ જાય.
અને જેની પર્યાપ્તિઓ પૂરી નહીં થાય એ ગર્ભમાં આવતા જ મરી જાય. જે આવે એ અંતર્મુહૂર્તમાં તે મરી જાય. ફ્રેક્શન્સ ઓફ સેકન્ડના કેટલા ભાગો એટલામાં જ મરી જાય, પૂરું થાય નહીં. એટલે જે વિકલાંગ પેદા થાય એ અપર્યાપ્તક નથી. સમજમાં આવે ને? જે વિકલાંગ પેદા થાય એનો મતલબ એ અપર્યાપ્તક છે એવું નથી. પર્યાપ્તિ તો એને પૂરી થઈ છે. અંગોપાંગમાં હીનાધિકતા છે એટલે વિકલાંગ કહેવાય, અપર્યાપ્તક નહીં. અથવા જે બનવાના પ્રોસેસમાં છે, હવે એનો પેલો પાંચ અંકુર ફૂટે, પેલો ગર્ભ રહ્યો ને 5 અંકુર ફૂટે 1 મહિના પછી, તો એ હવે ધીમે ધીમે ડેવલપ થશે. તો એનો અર્થ એ નહીં કે નિવૃત્ત પર્યાપ્તક છે. પર્યાપ્તિ એનું નામ છે કે એની શક્તિ પૂરી થઈ ગઈ છે, એ અંગોપાંગ બનાવવાની શક્તિ પૂરી થઈ ગઈ છે, એનું નામ પર્યાપ્તક કહેવાય, પર્યાપ્તિ કહેવાય છે. રચના પૂરી થશે એ તો એના કાળે થશે, એ જ્યારે થવાની 9 મહિના પછી જ્યારે થવાની હોય ત્યારે થશે. એ બધી આખી જુદી. એ પર્યાપ્તક ને અપર્યાપ્તકમાં લેવું એ રચના છે. પર્યાપ્તિ નામ એવું છે કે તમારે અંદર એ રચના બનવાની શક્તિ આવી ગઈ છે પૂરી. શક્તિ પૂરી થવી, તમારા અંદર એવું સામર્થ્ય આવી ગયું છે. હવે એ થશે ક્યારે? એના કાળે, પણ સામર્થ્ય આવી ગયું છે. તમે શક્તિ ખબર પડી? નામ શક્તિ નામ એનું છે કે અંદર રે. હવે તમે કાર્યરૂપ પરિણત થશે ક્યારે? કોઈને એમ છે કે મારે કોઈને અંદર એવું છે, મને એવી શક્તિ પેદા થઈ ગઈ કે શું શક્તિ પેદા થઈ? હું આકાશમાં ઉડી શકું. હવે આકાશમાં ઉડવાની શક્તિ એના અંદર પેદા થઈ ગઈ છે. હવે ઉડશે, જ્યારે મરજીએ ત્યારે ઉડશે, એવું છે. તો આ શક્તિ પૂરી થવી એનું નામ પર્યાપ્તિ કહેવાય છે, કે એના અંદર અંગોપાંગ પૂરા કરવાની શક્તિ આવી ગઈ છે આખી. શક્તિ નહીં આવે તો અપર્યાપ્તક કહેવાય. રચના પૂરી થવી એનું નામ પર્યાપ્તક નથી, શક્તિ પૂરી થવી એનું નામ પર્યાપ્તક છે, પર્યાપ્તિ. સમજમાં આવે છે કે ઉપર જાય છે? તમે બધા આત્માઓ છો, પોતાની જાતને ઘરડા માની લીધા છે. પ્રોબ્લેમ અહીંયા પેદા થાય છે. જીવે પોતાની જાતને શું માન્યું છે? આમે તો ઉંમર લાયક થઈ ગયા છીએ, એટલે ઉંમર લાયક થઈ ગયા એટલે દિમાગ ચાલે. પણ એમાં તો દિમાગ ચાલે છે, સતત એવો યાદ છે કે હું ઉંમર લાયક થઈ ગયો છું. યાદ છે કે એમાં કેટલું દિમાગ ચાલે છે કે હું ઉંમર લાયક. નેગેટિવમાં બરાબર દિમાગ ચાલે છે કે હું ઉંમર લાયક થઈ ગયો છું, મારી ઉંમર થઈ ગઈ છે. આમાં સતત દિમાગ ચાલે, પણ જ્યાં દિમાગ લગાવવો પડે અહીંયા લાગતું જ નથી. નેગેટિવિટી આવી ગઈ છે જીવના અંદર. જીવ અજર અમર અવિનાશી છે. આપણે જીવ છીએ, એક શરીર છીએ. જીવ ઘરડો થાય. આજે મીનાબેન મને ફર્રાટ હતી, એકદમ એક શ્વાસમાં આત્મસિદ્ધિની પેલી મોક્ષનો ઉપાયની ગાથાઓ સંભળાવી દીધી ફટાફટ. હવે ઉંમર થઈ છે, એક શ્વાસમાં શ્વાસ નહીં લીધે એમણે તો લગાતાર સંભળાવી છે. પ્રાયશ્ચિત હતું ને આપણે શિબિરનો, યાદ છે કે બધા પ્રાયશ્ચિત ભૂલી ગયા? હા, પ્રાયશ્ચિત લો તો જે પ્રાયશ્ચિત આપે એમના પાસે જવાનું, પછી એમને જેને સંભળાવવાનું, તો એનો દોષ પૂરો થાય. એમ નહીં કે આમે તો ઘણા તો ભૂલી જ જાય છે. શિબિરમાં આમાંથી કોણ કોણ હતા? હાથ ઊંચા કરો. હા, હવે જે પ્રાયશ્ચિત આપ્યું હતું સામૂહિક બધા એમ દોષ તો કર્યો જ હતો. કોણે કોણે યાદ કરી લીધા બધા? એક મીનાબેન પાકું કરી લીધું છે ને.
પાકું કરવાની ઈચ્છા પણ છે કે નહીં હજી? હા, આ તો ભૂલી ગયા, આ તો શિબિર પતી ગયું, નેક્સ્ટ શિબિરમાં યાદ આવશે. આમ તો દોષોનું નિવારણ થાય, કોઈ પ્રાયશ્ચિત આપ્યું છે તો ભાઈ આપણે એનો દોષનું નિવારણ કરવું છે તો ભૂલી જવાનું. એનો અર્થ એમ છે કે આપણે સિરિયસ નથી, આપણે દોષ કાઢવામાં સિરિયસ, એટલે આ દોષ ફરીથી થશે. કેમ ફરીથી થશે? કે કોઈ વાંધો નહીં, પ્રાયશ્ચિત લઈ લેશે ને. પ્રાયશ્ચિત કરવું કોને છે? સામેવાળા તો પ્રાયશ્ચિત આપીને ભૂલી જવાના છે, કેમ કે એ તમારી એટલી ટેન્શન થોડા રાખે તમે કરો. એમને પોતાની સાધના કરવી છે કે બધાને યાદ રાખશે કે આને આ પીધું ને પેલાને આ પીધું. તમારો દોષ કાઢવો તમારી ગરજ છે. મીનાબેનને એમ થયું કે ભાઈ આપણે યાદ થઈ ગયું તે સાંભળાવવું છે, તો એમને ટાઈમ લઈને ટાઈમ કરીને આયા, ગરજ છે જીવ, બાકી કોઈની ગરજ નથી. તમારે જેમ કરવો તેમ, તમ પ્રભામાં જવો તોય જાઓ, દેવલોકમાં જવો તોય જાઓ, તિર્યંચમાં જવો તોય જાઓ, કોને શું પડી છે? આ તો પોતાની ગરજ, આખી વસ્તુ જિમ્મેદારી આખી પોતાની ઉપર આવી જાય છે. 439 सम्मूर्छन पंचेंद्रिय के 18 भेद कौन कौन से हैं? सम्मूर्छन पंचेंद्रिय, सम्मूर्छन किसको कहते हैं? पारुल बेन समझा? हाँ, सुखत ना, એનું નામ सम्मूर्छन નથી. सम्मूर्छन કોને કહેવાય? હા, यस, वेरी गुड. शंकर भाई के लिए ताली बजाई जाए. वर्षों પછી बोलिया છે. माता पिता की अपेक्षा के बिना वातावरण में इधर उधर के परमाणुओं को लेकर के अपना शरीर बना लेता है. उस जन्म का नाम क्या है? सम्मूर्छन जन्म. वो भी ने 10 बार ऐसा बता दिया है कि एकेंद्रिय से लगा करके असंगनी पंचेंद्रिय तक सब भी नियम से सम्मूर्छन है. ऐसा सर्वज्ञ वितराग देव का आदेश है. तो अब ये लाइट में हो रहे हैं कि कहाँ हो रहे हैं कि किधर हो रहे हैं, सब ले लेने का. दिखाई नहीं मतलब दिखते भी है ना, कीड़े आ जाते हैं, अभी रात को आएंगे, यहीं पैदा हो जाएंगे फटाफट. અને આટલા મોટા મોટા કીડા बरसात होते ही मोटा मोटा. अब તમે એમ आप ऐसा विचार करो कि अभी अंडे बनेंगे, फिर अंडे में से लार्वा बनेंगे, फिर वो निकलेंगे और फिर धीमे धीमे क्रम से विकास होगा. तो તમારે 2 સેકન્ડમાં એટલા મોટા કેવી રીતે થઈ ગઈ? वो 2 सेकंड में इतने बड़े ही पैदा होते हैं. वो ऐसा नहीं कि छोटे पैदा हुए न बड़े हो गए, ऐसा नहीं. वैसे हैं वैसे ही पैदा होते, पैदा ही ऐसे होते हो. जो अंडज होते हैं उनके अंडा फूटता है और फिर धीमे धीमे क्रम से बनते हैं. जो गर्भज होते हैं वो भी गर्भ से निकलता है और फिर धीमे धीमे बड़े होते हैं. सम्मूर्छन तो जितने आकार के होते हैं उतनी ही आकार के बनते हैं. उसकी उत्पत्ति उसी आकार की हो जाए. ऐसा नहीं कि वो क्रम क्रम से बढ़ते हैं, ऐसा नहीं. आश्चर्य देखाय ने, पानी में रहवा वाला सांप वो सम्मूर्छन जीव है. अब वो असंग नहीं होते हैं. जो पानी में रहते हैं ना सांप, वो मैक्सिमम असंग नहीं होते हैं, मन नहीं होता है उनका, और उनका सम्मूर्छन जन्म होता है. और वो सम्मूर्छन जन्म होता है तो उसकी जितनी लंबाई चौड़ाई वगैरह जितनी होती है ना, उतना ही जन्म लेते ही उतना ही होता है. ऐसा नहीं है कि किसी नागिन के पेट में से निकला है ना फिर थोड़ा छोटा होगा, ऐसा नहीं है वो. क्योंकि सम्मूर्छन में वो किसी उसकी मम्मी नहीं है, कहीं से निकला ही नहीं है छोटा, वो बड़ा ही पैदा हुआ है. उस पानी के ही परमाणुओं को लेकर के उसका जन्म हुआ है. आश्चर्य है ये सारी चीजें.
भगवान ने देखा है मेढक भी ऐसी होती है। पत्थरना वच्चे पैदा था हो। एक चट्टान होती है और उसके बीच में पैदा होता है जहां कोई हवा भी आ जा नहीं सकती है, वहां वो मेढक पैदा होता है। जब चट्टान चीरते हैं तब मेढक निकलता, पता पड़ता है कि इसके अंदर मेढक है, समूर्छन है। वहीं के परमाणुओं को लेकर के उसने वहां अपना शरीर बनाया है। मेढक दोनों प्रकार के हैं। पानी में रहने वाले होते हैं वो ज्यादातर असंगनी होते हैं, और जो इधर उधर पानी में नहीं रहते हैं और इधर उधर वो संगनी होते हैं, दोनों प्रकार से। अब अपन उसकी कोई खास पहचान तो अपने पास नहीं है। भगवान ने देखा राई मात्र घटवद नहीं, देखा केवल ज्ञान। यह निश्चय कर मानिए, प्रथम तजिए ध्यान। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा इसलिए स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन का महामत्स्य राघव मत्स्य पैदा होता है जो समूर्छन है। कितना? 1000 योजन का महामत्स्य पैदा होता है और वो समूर्छन है। पानी में पैदा हो जाता है सर। वही के परमाणुओं को ऐसा नहीं कि किसी और धरती पे पैदा हुआ और वो पानी में जाकर के गिरता है, उसी पानी में पैदा होता है वो। वो कैसे होता होगा, अपना दिमाग चलता नहीं। 1000 योजन कितना होता पता है? 1 योजन होता है वो 2000 कोस का होता है, और 1 कोस होता है वो लगभग 1.5 माइल का होता है। अब 2000 कोस मतलब कितने किलोमीटर देखो आप। इसमें से 1000 का गुणा करो तो कितने किलोमीटर हुए? ये है ना, ये पूरा भारत आ जाए, संसार आ जाए, एशिया खंड आ जाए, इतना वो मछली होती है। और वो कैसे होती है? अपने आप पैदा हो जाती है। पर ये जो होते हैं उनको ये बड़े योजन में मापते हैं। कर्म सत्ता का है, उसने समूर्छन नाम कर्म बांधा है तो समूर्छन पैदा होगा। कर्म बांधा ऐसा है। हर एक काम कर्म के उदय से होता है, कर्म के उदय के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पर आप जैसा नाम कर्म बांधोगे वैसा आपको जन्म मिलेगा। सीधी सट बात है। इधर की चीज इधर ले ली, उधर की उधर ले ली, उधर से भी ले ली, उधर से भी ले, ऐसे चोरी करेगा उसे मूर्छन जन्म लेगा, क्योंकि इसकी आदत पड़ गई है। इधर उधर से लेने की आदत पड़ गई है, बिना काम के अनावश्यक। अब वो आदत होती है तो उस आदत से ऐसा ही शरीर मिलता है, तो नौ कर्म वर्गणा को भी ऐसे ग्रहण कर लेता है, आदत। अब कहते समूर्छन जन्म कैसे आता है? ऐसे होता है। इन आदतों के कारण से होता। डरने की बात नहीं है, अपने में से किसी का नहीं होगा। उपवास जन्म हो सकता है पर समूर्छन जन्म होगा। उपवास जन्म तो होता है ना, देवलोक में उपवास शैया पे जन्म, उपवास जन्म नरक में भी होता, दोनों में से। तो समूर्छन पंचेंद्रिय के 18 भेद कौन कौन से हैं? तो जलचर, स्थलचर, नभचर। जो समूर्छन पंचेंद्रिय होते हैं वो जलचर भी होते हैं, स्थलचर भी होते हैं, और नभचर मतलब आकाश पक्षी वगैरह। इन तीनों के सैनी असैनी अपेक्षा से 6 भेद हुए। सैनी मतलब संगनी, तो 6 भेद हो गए। और इन 6 के पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा 18 जीव समास होते हैं। तो देखो, समूर्छन जीव पंचेंद्रिय जीव,
तो सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव सैनी भी होते हैं और असैनी भी होते हैं। सम्मूर्छन होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उनका मन नहीं होता है, उनका भी मन होता है। अब वो राघव मत से वो मन वाला है, उनके मन भी होता है, बस उसका जन्म है वो सम्मूर्छन हुआ है। और ऐसे जीव होते हैं वो सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं और अणुव्रत भी धारण कर सकते हैं। समझ में आए? सम्मूर्छन जन्म वाले संगनी पंचेंद्रिय जीव होते हैं वो सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं और पंचम गुण स्थान भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे असंख्यात ये जो स्वयंभू रमण समुद्र में हैं, ऐसे असंख्यात पंचेंद्रिय हैं जो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। कितने हैं? असंख्यात पंचम गुण स्थान। व्रत पालते हैं, सम्यक दर्शन तो है ही, और व्रत भी कहाँ रह के पालते हैं? पानी में रह के पालते। हाँ, वही तो बात है। अब पानी में रह के पालते हैं, खाते कैसे? आप छानने की बात करो, खाते कैसे होंगे? सब खाते हैं, सारी चीजें वनस्पतियां होती है। हम क्या पंचम गुण स्थान वर्ती वनस्पति का त्याग करता है क्या? उसके वनस्पति का त्याग थोड़ी है। और क्या समुद्र में वनस्पति नहीं होती? समुद्र में वनस्पति होती है, उस वनस्पति को खाते हैं। अब नीचे जाओ तो नीचे बहुत सारी वनस्पतियां मिलेगी आपको, उसको वो खाते हैं। अब पानी कैसे पीते हैं? तो ऊपर सूर्य के प्रकाश होता है जब दिन में, तो ऊपर का पानी है ना गर्म हो जाता है, क्योंकि प्रकाश पड़ता है ना। वहां ऐसा दिन रात नहीं होते हैं अपने जैसे। ये जो दिन रात होते हैं ना, वो तो अपने ढाई द्वीप में ये जो चंद्र सूर्य वो चक्कर लगाते हैं सुमेरु के चारों, इसलिए अपने यहाँ दिन रात होते हैं। इस ढाई द्वीप के अतिरिक्त कहीं पर भी दिन रात होते ही नहीं है, इसलिए वहां परमानेंट सूरज चमकता है 24 घंटे। परमानेंट सूरज चमक रहा है, इसीलिए वहां परमानेंट ऊपर का पानी प्रासुक होता है, गर्म होता है। और जैसे ही उसको प्रासुक हो गया तो ऊपर आके पी लेते पानी, क्या है, गर्म पानी पी लेते हैं। हाँ, संगनी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थान वर्ती को ज्ञान कैसे नहीं होगा? आप अपने घर के कुत्ते को भी समझाओ ना कि तेरे को ऐसे खाना है, ऐसे बैठना है, ऐसे पानी पीना है, कोई आए तो तेरे को ऐसे नमस्कार करना है, तो वो सीखता है कि नहीं सीखता है? अज्ञानी है पर कुत्ता सीख जा रहा है। तो फिर संगनी पंचेंद्रिय, वो भी तो पंचेंद्रिय है, उसके कितना दिमाग होगा, उसकी कितनी शक्ति होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। सम्यक दृष्टि जीव है, कितने कषाय मंद होगी उसके। कोई बताने वाला नहीं है वहां पर, वो अपने आप ही स्वयंभू है, सब समझता है। एक बार ज्ञान होने के बाद गुरु की जरूरत नहीं होती है। अपने विवेक शक्ति से वो वहां की परिस्थितियों में जितना बेस्ट अहिंसा धर्म का पालन कर सकता है उतना करता है। अब वहां इससे आगे का धर्म है ही नहीं तो पालन नहीं कर सकता। अब आपको छान करके उबालना चाहिए पानी, अब वहां उनके पास न छल नहीं है, न उबाल करके वो उनके पास न तो हाथ है, तो वो व्यवस्था ही नहीं है। पर जितनी व्यवस्था है उतना वो बेस्ट पालन करता है। व्रत नाम इसका है, ये तो मनुष्यों के लिए व्यवस्था है। छानना ये करना ये व्यवस्था है मनुष्यों के लिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य ये सब कर सकते हैं, और अगर ये सब कर सकते हैं फिर भी नहीं करता है तो वो प्रमाद कहलाता है। पर जहां ये व्यवस्थाएं ही नहीं होती है, वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं में चलना वो अप्रमत्तता कहलाती है। वहां इसी का नाम अप्रमत्तता। और हमारे पास व्यवस्था होते हुए भी हम ऐसा नहीं करें तो हम प्रमाद में गिने जाते हैं। इसलिए मनुष्यों के लिए पंचम गुण स्थान को पालना बड़ा कठिन है,
बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। तिर्यंचों को इतना ध्यान रखना नहीं पड़ता है, उनको केवल इतना ध्यान रखना पड़ता है, उसको मांसाहार नहीं करना है, अर्थात वनस्पति का आहार करना है, और उस प्रकार से वो ऊपर प्रासूक पानी पीना है। और ऐसा वो स्वयंभ्रमण समुद्र आदि में तो वो कर सकते हैं, परंतु कर्म भूमि में तिर्यंच जीव ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे उनको सम्यक दर्शन पैदा होता है, अब कोई शेर है, कोई क्या है, अब वो घास तो खाएगा नहीं ना। सांप है तो कोई दूध पिलाने वाला तो कोई है नहीं ना उसके पास, और रोज कौन दूध पिलाएगा, कौन सब्जी रोटी खिलाएगा उसको। उसको पता है कि मैं मेरी चर्या का पालन नहीं कर सकता हूं मैं, तो वो क्या करता है, जिस समय सम्यक दर्शन होता है उसी समय वो सल्लेख ना ले लेता है। आजीवन आमरण आता है कि नहीं आता है, वो नाग को अथवा वो हाथी ने भी ले लिया, जिसको भी हुआ वो अंत मरण पर्यंत मर जाते, फिर आहार पानी कुछ नहीं, ऐसा है। तो सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं है कि वो सांप बना इसलिए उसको मेढक खाने की छूट हो गई, ऐसा नहीं है। आप सम्यक दृष्टि हुए इसलिए अब आपको विवेक जागा है, अब आप मेढक नहीं खाओगे, भले मर जाएंगे, क्योंकि इसके बिना दूध देने वाला कोई है नहीं, और वो मांसाहार नहीं करेगा तो शरीर टिकेगा नहीं, तो हमको शरीर नहीं टिकाना है। तिर्यंच भी इतना ध्यान रखता है, मांसाहार नहीं करता है, सम्यक दृष्टि जी देखो, इतनी समझ आती है, सम्यक दर्शन पैदा हो जाते ही अंदर कितनी विशुद्धि हो जाती है। शरीर को मुख्य नहीं गिन रहा हो, शरीर जाए तो ये तो फिर मिलेगा, शरीर मिलना कोई સમજમાં બેસતું નથી બેસતું ને બેસે છે, ઘણાને નથી બેસતું। આ તો ભાઈ વાતો છે તમારી, કઈ એવું થોડું થતું भाई। समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, उसको पेंडिंग फाइल में रख देना, परंतु कहाँ नहीं डालना, कचरा पेटी में नहीं डालने का। सब चीजें हमको वर्तमान में समझ में आएंगी ऐसा नहीं। 440 गर्भज पंचेंद्रिय के 16 भेद कौन कौन से हैं? कर्म भूमि के 12 और भोग भूमि के 4। अब गर्भ में जो आते पंचेंद्रिय, तो कर्म भूमि के 12 भेद कौन से हैं? तो जलचर, स्थलचर, नभचर, इन तीनों के सैनी असैनी के भेद से 6 भेद हुए, जैसे वो समूर्छन के थे ना ऐसे। और इनके पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक अपेक्षा 12 भेद हुए। अब क्योंकि जो कर्म भूमि के जो गर्भज होते हैं वो अपर्याप्तक नहीं होते, इसलिए वो भेद इसमें गिने नहीं। तो 12 भेद हो गए, आगे और पढ़ेंगे। भोग भूमि के 4 भेद कौन कौन से हैं? तो स्थलचर और जलचर, इनके पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक की अपेक्षा 4 भेद हुए, क्योंकि भोग भूमि में पक्षी नहीं होते, या तो पानी में रहने वाले होते हैं अथवा जमीन पर रहने वाले होते हैं। भोग भूमि में पक्षी पैदा होते ही नहीं हैं, इसलिए वहां दो ही प्रकार के, और दोनों पर्याप्तक भी होते हैं और निवृत्त पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक नहीं होते हैं, क्योंकि वो नियम से अपनी पर्याप्तियां पूरी करेंगे, इसलिए वो निवृत्त पर्याप्तक तो हो सकते हैं, जब तक प्रोसेस में है तब तक उनका नाम निवृत्त पर्याप्तक है, और प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उसी का नाम क्या हो जाता है, पर्याप्तक। तो ऐसे 4 भेद हुए। भोग भूमि में असैनी तिर्यंच नहीं होते, असंगनी तिर्यंच भोग भूमि में होते नहीं है, और पक्षी भी नहीं होते। चलो आगे अपन कल पढ़ेंगे, एक साथ सारा दिमाग में अपने अच्छे तरह से इसको बिठा लेने का है। हाँ, भोग भूमि में जलचर हैं, स्थलचर नभचर तो है ही।
गुजराती में ऐसा है? नहीं नहीं, सुधार लो। हम्म। नहीं। हम्म। भोग भूमिना, इसमें लिखा है स्थलचर और जलचर, नभचर। अभी है ना, मैं इसको थोड़ा सा कंफर्म करके बताऊंगा आपको कि वहां जलचर नहीं होते हैं कि नभचर नहीं होते हैं। हो सकता है मेरी कोई समझ में गलती हो, तो कल इसके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त कर। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे ध्यानमय, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर जय। वो प्रणमो पद तेवर जय। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओम। जय सद्गुरु।